The Environment Protection Act of India was enacted in 1986. The Environment Protection Act of India was enacted in year of 1986. It extends to whole of India. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. When the Environment Protection Act for Prevention for and Protection of the Environment was passed by Government of India, is option A 1986. In which following year the Environment Protection Act was passed? It was 1986. The Environment Protection Act in India was enacted in which of the following year? 1986 AD. फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. द एनवायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ physiographic factors. The environment may be divided into biotic and abiotic environments. The biotic environment is made up with biotic factor that all living things in environment. The abiotic or physical environment is made of all physical factors affect organisms. Example: temperature, light intensity, the amount of available water. Generally, environment can be classified as following categories. Which among the following not part of such category? This is option A, operational environment. Generally, environment can be classified as physical, cultural and biological environment. Physical environment include landform, water bodies, climate, soil, rocks, mineral, etc. Biological environment includes plants, animal, microbiome, etc. Where cultural environment include man-made features such as economic, social and political elements. फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मैटर ऑफ इंटरजनरल सेंसिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ natural resources. The concept of sustainable development was emphasized by United Nations Conference on Environment and Development, which defined it as development that meet the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. Sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of use of natural resources. Main object of sustainable development is just prudent use of natural resources, its conservation and proper management. This term was explained in World Commission on Environment and Development. Report of 1987 titled Our Common Future. Sustainable development was fully supported in Agenda 21, Rio Declaration in R Summit held in 1992. Sustainable development was prominent issue of Johannesburg Summit 2002. Notably, the United Nations has identified 17 sustainable development goals which have been to be released by 2030. A sustainable development index has also been initiated to measure the progress made by different nations in direction of achieving this goal. Importantly, India has ranked 120 out of 165 nations in Sustainable Development Index 2021. तो आगे दोस्तों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? जब अब हम जो रिसोर्सेज अभी कंज्यूम करेंगे उसको थोड़ा मैनेज करके कंज्यूम करेंगे, जैसे कि फर्दर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा. जो फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे उनके लिए
कुछ रिसोर्सेस बचा के रखना है, जो वो आने वाले समय में वो भी यूज उसको कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 पोजीशन रैंक, इसमें साइड में है कंट्री। रैंक 1 में फिनलैंड, सेकंड रैंक में स्वीडन, थर्ड रैंक में डेनमार्क, फोर्थ में जर्मनी, फिफ्थ में बेल्जियम। हमारा प्यारा सा इंडिया है 120 में, और पाकिस्तान है 129 में। व्हाट इज ब्लू कार्बन? Blue, a carbon captured by ocean and coastal ecosystem. Blue carbon is a simply term of carbon captured by the world's ocean and coastal system. जो कार्बन जो ओशन और कोस्टल का जो इकोसिस्टम है, उसको वो जो कार्बन कैप्चर करेगा, तो उसको हम ब्लू कार्बन बोलेंगे। Sea grasses, mangroves, and salt marshes along our coast capture and hold carbon, acting as something called as carbon sink. तो क्या बोल रहा है कि जो सी ग्रासेस है, मैंग्रोवर्स है, सॉल्ट मार्शेस है, वो कार्बन को कैप्चर करके होल्ड करेगा। तो उसको हम बोलेंगे कि कार्बन कार्बन सिंक या फिर ब्लू कार्बन। The coastal system through much smaller size in than the planet's forest. This carbon has much faster rate. Sequester this carbon at a much faster rate and can continue to do so for million of years. तो बेसिकली ब्लू कार्बन क्या क्या होता है? जो सी ग्रासेस, मैनग्रोवर एंड सॉल्ट मासेस जो है, वो जो कार्बन को कैप्चर करेंगे उसको हम ब्लू कार्बन बोलेंगे। Saving energy and other resources for future without sacrificing people's comfort in present is definition of which following concept? I think it's sustainable development. तो क्या है, हमारा हमारा जो अभी का जनरेशन के कंफर्ट के लिए हम फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्सेज जो है, फ्यूचर जनरेशन जो रिसोर्स है उसको ज़्यादा ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज बचा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम सब सारे ख़त्म कर लेंगे यूज़ करके, कंज्यूम करके। इसके थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, जो रिसोर्सेज अभी कितना हमको खपत करना है और फ्यूचर के लिए कितना बचाना है, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। और एनवायरनमेंट को कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए उसको ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे से पॉलिसी करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कैसे हम एक कमेटी बैठाना चाहिए जो कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। और इसलिए और इसके लिए बहुत सारा कॉमेडी भी है गवर्नमेंट में, और बहुत सारा पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुआ है, आगे भी कुछ होने वाला है। तो उसको हम आगे देखेंगे कैसे प्रॉपरली सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। Which of the following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India? उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6। यूनाइटेड नेशन हैज identified 17 sustainable development goals which had to released by year 2030. Among these goals, sustainable development goal 6, clean water and sanitation. Clean water and sanitation ensure ability and sustainable management of water and sanitation for all. Today, 2.2 billion people lack access to safely managed drinking water, and more than
4.2 billion people lack safely managed sanitation. The decided of sustainable energy for all the initiative of United Nations. Option A is correct answer. United Nations. Renewable energy is a form of energy that not the cause of pollution nor has it adverse effect of natural resources. Sustainable energy is the seventh goal of 17 United Nations Sustainable Development Goal with a call to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by 2030. The Sustainable Energy for All Initiative Act in support of 2014 to 2024 decided of sustainable energy for all as declared by United नेशन जनरल असेंबली. तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या एक्चुअली बोल रहा है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक एनर्जी है जिसको हम जो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन पे ज्यादा इफेक्ट ना, पॉल्यूशन पे ज्यादा मत बढ़ाएगा, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा. ठीक है, और सस्टेनेबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान देगा. और जो पॉपुलेशन हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो पॉपुलेशन का द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वो ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जो कोयला है, पेट्रोल है, कोल पेट्रोल, और जो हम जो उसको कंज्यूम करते हैं उसके वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा नहीं होगा. हम ज़्यादा फोकस करेंगे रेन्यूएबल एनर्जी. रेन्यूएबल एग्जांपल मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी. ठीक है, तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट में कुछ बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे. जो प्योर एनर्जी होता है, विंड का एनर्जी, विंड से हम कन्वर्ट करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. वाटर एनर्जी से डैम लगा के, डैम डैम बना के हम यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी बना सकते हैं. ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल बैठा के उसमें हम एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे. और रिन्यूएबल एनर्जी एक अच्छा फॉर्म होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, टोटल होल वर्ल्ड के लिए. तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करना चाहिए. गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी ला रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. आगे भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट बैठेगा. ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. which of the following is nodal institution for implementation of सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो नोडल एजेंसी हमारा क्या है? हमारा नीति आयोग. तो ठीक है, थोड़ा देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन सी 5th June. The World Environment Day is celebrated on 5th June every year. China was the global host of 2019 World Environment Day with air pollution as the theme of year's edition. In 2021, the theme of World Environment Day ecosystem restoration. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक
Silent Spring published on 1926, which set the tone for environment movement in world, was written by option C. Carcel Carson. Silent Spring is an environmental science book published in 1962, though written by American biologist and ecologist Rachel Carson. The next question: country's national capital, natural capital include all of the following. Option C, except option C, roads. Natural capital include all renewable and non-renewable environment resources, includes air, water, land, minerals, and forest. In other words, only those resources which are captured by nature without any human intervention can be deemed as a natural capital. Hence, road cannot be include the country's natural capital. तो नेचुरल कैपिटल का होता है जो कंट्री का जो उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब जो उसका जो फॉरेस्ट है और वाटर है, एयर है, वो उसका कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस है। और जो रोड है वो मैनमेड है, इसीलिए वो नेचुरल नहीं होगा, उसका आर्टिफिशियल रिसोर्सेस कैपिटल रिसोर्सेस में जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्स को हम देखेंगे एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेस इन एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेस। इन एग्जीक्यूटेबल रिसोर्स में क्या आएगा? जो कभी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रेन एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। एग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेस में आएगा वो अभी दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में आएगा रिन्यूएबल, सेकंड पार्ट में आएगा नॉन रिन्यूएबल। उसको दो कैटेगरी में सेग्रीगेट किया गया है, फर्स्ट है रिन्यूएबल, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखेंगे फॉरेस्ट, पेस्चर, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर, विंड, एनिमल, सॉइल। एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हम देखेंगे, एक है बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। बायोटिक में बायोटिक स्पीसीज आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा एबायोटिक में पेट्रोल, कोल, गैस, जिप्सम, मेटल्स। तो हम अभी क्या देखें एबव में डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2018? तो 18 में जो हुआ था उसका आंसर है ऑप्शन सी, बीट प्लास्टिक pollution. India was the global host of 2018 World Environment Day, June 5. The theme of this year edition was Beat the Plastic Pollution. तो इंडिया ने होस्ट किया था 2018 को, जो हमारा हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें इंडिया होस्ट किया था 2018 को। और इस समिट में उसका हमारा एजेंडा था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक जो प्लास्टिक के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे हम रोक लगाएं, उस पर कुछ कैसे रोक लगाएं और उससे उसको प्लास्टिक को कैसे मैनेज हम करें, ठीक है। एंड 2019 में चाइना होस्ट किया था एनवायरनमेंट डे को, उसका एजेंडा था एयर पॉल्यूशन चाइना का। और इन 2020 द थीम ऑफ वर्ल्ड डे वाज बायोडाइवर्सिटी। एंड 21 को पाकिस्तान ने होस्ट किया था उस समिट को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। उसका उनका जो था एजेंडा वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पाकिस्तान एक्ट एज ग्लोबल होस्ट ऑफ द डे, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन पर्पस के लिए आए हैं, एग्जाम भी नज़दीक है, तो फिर हम थोड़ा ओवरव्यू करते हुए यहाँ पे चलेंगे। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करके आपका डाउट को सॉल्व करूँ।
अगर कुछ कोई आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज, ऑप्शन सी, वाटर साइकिल। तो देखेंगे, द वाटर साइकिल इज ड्रिवन primarily by the energy from the sun। ठीक है, द सोलर रेडिएशन ड्रिवन बाय द साइकिल by evaporating water from ocean, lakes, rivers, and even the soil in form of water vapor and clouds. The water vapors eventually gain enough mass to fall back to the earth। तो क्या कह रहा है कि सोलर रेडिएशन जो साइकिल होता है उसमें वाटर एवापोरेशन होता है, कहाँ से? ओशन से, लेक से, रिवर से, सॉइल से एवापोरेट होकर जाता है, क्लाउड्स बनता है, और क्लाउड्स तो मास में कन्वर्ट होके दे गेटिंग एनफ मास एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इकट्ठा इकट्ठा होके जो मास उसका बढ़ जाता है, तो वो क्लाउड फॉर्म, जो रेन फॉर्म में फिर से धरती में, जहां से वाटर गया था धरती में, ओशन में, लेक में, रिवर में, जहां जहां से गया था उसमें वहां पर नीचे गिर जाता है वाटर। द वाटर साइकिल एसेंशियली क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम, वाटर एक क्लोज सिस्टम है। Meaning that volume of water that is in hydrosphere today is the same amount of water that always been present in the earth system। तो अभी के लिए जितना वाटर सिस्टम है, तो पहले से भी उतना ही वाटर था हमारे प्लानेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन नागपुर। देखेंगे इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज नेरी, is a research institute created and funded by government of India। It is established in Nagpur in 1958 as a central public health engineering research institute। पहले वो जो बनाया गया था, आज इसको हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले बनाया गया था, बाद में शायद इसको कन्वर्ट किया करके नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया गया होगा। और वो उसको मेनली इसको फंडिंग मिलता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। विथ वो फोकस इज बेसिकली फोकस ऑन वाटर सप्लाई, स्वेज डिस्पोजल, रिलेटेड डिजीजेस, सम एक्सटेंड ऑन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो जो पहला जो बनाया गया था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो फोकस कहाँ पे करता था? वाटर सप्लाई पे, स्वेज डिस्पोजल पे, मतलब जो स्वेज कैनाल, जो स्वेज का जो होता है, स्वेज का जो ड्रेनेज पाइप होता है घर से निकल कर, जो घर घर का जो स्वेज होता है वो कनेक्ट करते हैं एक मेन टनल के साथ, जो हमारे रोड के नीचे बना होता है, स्वेज का बना होता है, उसको कनेक्ट करके कैसे वो ड्रेन होगा रिवर पे या फिर कोई बड़ा सा कैनाल पे जो कनेक्ट होके वो कैसे ड्रेन होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होगा, और बारिश का पानी रोड पे जब जम जाएगा तो स्वेज में भी थोड़ा दिक्कत होता है, वो कैसे प्रॉपरली रास्ते का जो रोड का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, वो कैसे बाय थ्रू ड्रेन में, वो जो नाला है नाला में कैसे बह के अच्छे से निकल जाएगा। और फिर डिजीज, कैसे कैसे जो छोटा जो डिजीज होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू हो गया, उसमें तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मलेरिया होता था, डेंगू भी बहुत ज़्यादा होता था, उससे कैसे हम रोक लगाएंगे। एक्सटर्नल सम अंडर सम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल अपना जो वेस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, वो ऐसे ही कोई लैंड में, लैंडस्केप में डाल देते हैं, और फिर कोई जो इंडस्ट्रियल बैड फ्लूइड होता है ना, जो हार्मफुल फ्लूइड होता है, वो नदी में शॉर्ट ड्रेनेज कर देते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए जो रोक लगाना था वो शायद उसको देख रहे होंगे। There is pioneering laboratory in the field of environmental science and engineering and part of Council of Scientific and Industrial Research। नेरी है 5 जनरल laboratory जो नेरी है,
नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका 5 लैबोरेटरी है जो हमारा अलग अलग सिटीज में है। पहला है चेन्नई, सेकंड दिल्ली, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ कलकत्ता एंड फिफ्थ इज मुंबई। नेरी फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो नेरी होता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको कमेंट सेक्शन में आपको डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको सजेशन होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने के लिए। और आपको आपको कैसा कैसा कंटेंट चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देगा, और कौन सा घटना चक्र का कौन सा सीरीज चाहिए कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, और मैं उसको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि डालने के लिए, जैसे कि आप लोग का रिवीजन जल्द से जल्द हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ऊपर हम देखे डिस्कशन में 1958 नागपुर में हुआ था। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सही है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये सही है। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिस्क्रिप्शन पॉवर्टी, ये भी सही है। डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ये भी सही है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, prevention and control of pollution, decreasing poverty, all are important for sustainable development. It is impact for achieving the goal of sustainable development to make policies on information about our environment and ecology. तो बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हम पॉलिसी बनाएंगे इसके लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। एनवायरनमेंट का और इकोलॉजी का हमारे पास इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से बना सकें। Presently, sustainable development has become an alternative approach of theories of development. तो अभी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और अप्रोच बन गया है डेवलपमेंट के लिए। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। सस्टेनेबिलिटी को लेके कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे वही अभी हमारे लिए मैंडेट है। एंड अभी वो इट्स ए important factor of the time. Certain information are required for policy information on sustainable development. ठीक है, तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन जो है वो द इंफॉर्मेशन हम देखें, कौन सा इंफॉर्मेशन देखें हम। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन, पॉवर्टी लेवल का इंफॉर्मेशन, इसको हम कुछ एनालिसिस करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे प्रोत्साहन दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और इसी वजह से और ऐसे ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे ज़्यादा ही ग्रोथ होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से पुश होगा आगे, और बहुत बढ़िया सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर ऑप्शन ए assessing the carbon footprint of building operation around the world। ठीक है, तो assessing the carbon footprint building operation around the world, उसमें भी आता है enabling commercial farming enter around the world to enter carbon emission trading, ये सही नहीं है। enabling government to assess all ever carbon footprint caused by their countries, ये भी सही नहीं है। assessing the overall carbon footprint caused by fossil fuel by world यूनिट टाइम, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसरिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड।
common carbon metric for measuring energy use and reporting greenhouse gases emission from building operation। तो जो कार्बन मेट्रिक है फॉर मेजरिंग एनर्जी यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रहा है बिल्डिंग ऑपरेशन की वजह से, उसको हम उसको जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम कॉमन कार्बन मेट्रिक में लेंगे। लीडिंग एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव थ्रू एक्सटेंसिव इंटरनेशनल cooperation, development, and universal method of building's carbon footprint. The common carbon metric is called calculation used to define measurement, reporting, verification of greenhouse gases emission associated with operation of building types of particular climate region। जो पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन का, जो पर्टिकुलर क्लाइमेट का जो बिल्डिंग टाइप से उससे ज़्यादा जो एमिशन हो रहा है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और जब एमिशन हो रहा है इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली हम मानेंगे कि कॉमन कार्बन जो है वो एक मेजरिंग है, एक मेटेरियल को मेजरिंग है जो हम एनर्जी यूज करेंगे, ग्रीन हाउस जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, और इसके लिए जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये एक ऐसा मेजरमेंट किट है जो हम घरों में जो एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इससे जो हमारा जो एमिशन हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैस में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, हमारे घरों में जो एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, इससे जो एमिशन हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस में कैसे बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको हम बेसिकली बोलेंगे कॉमन कार्बन। ठीक है, while it is not a building rating tool, it constant with method for asserting the environmental performance for building used globally used as World Business Council for Sustainable Development, World Resource Institute, Greenhouse Gases Protocol, etc। वो कह रहा है कि ये बेसिकली फाइल इट इज बेसिकली ये बिल्डिंग रेटिंग टूल नहीं है, मगर वो एक परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल है। ठीक है, जो ग्लोबली यूज किया जाता है किन किन संस्थाओं के द्वारा, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, वो वो उसको यूज करते हैं, इसको कॉमन कार्बन मैट्रिक को, कि कितना एमिशन हुआ है, कितना वो घरों में कितना घरों में कितना वो जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, यूज करने की वजह से ग्रीन हाउस गैस में कितना बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, वो उसमें उसको मेजर करते हैं वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे और कमेंट में आपको डाउट अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which one of the following is not the objective of smart city development? तो यहाँ पे यह बोल रहा है कि कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए, वो होता है स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, गुड गवर्नेंस ये तो चाहिए सस्टेनेबल के लिए, क्लीन ग्रीन सिटी ये तो मतलब मैंडेट है, मैंडेटरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और स्मार्ट मोबिलिटी ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन को क्या दिया गया है।
The Smart City Mission is an innovative and initiative by Government of India to derive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development and harnessing technology as a means to create smart outcome for citizen. सिटीजन के लिए कैसा इकोनॉमिक सिटीजन, हमारे जो सिटीजन इंडियन सिटीजन है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे पॉलिसी बनाया है, बहुत सारा प्लान बनाया है, बहुत सारा ब्लूप्रिंट बनाया है कैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लोकल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा एंड टेक्नोलॉजी कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल मैनर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट सिटी मिशन का एक इनोवेटिव एंड न्यू इनिशिएटिव लिया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखेंगे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर मिशन अर्थ, जो कोर एलिमेंट क्या होता है इस मिशन के लिए। अडेक्वेट वाटर सप्लाई अच्छे से होगा। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। एंड सैनिटेशन इंक्लूड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड स्वच्छ भारत जो अभियान हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, हमारा एनवायरनमेंट कैसे क्लीन रहेगा, और जो वेस्ट जो हमारा निकला है उसको सेग्रीगेट करके करके रिसाइकल करके उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जो उसको हम रिसाइकल प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। उससे हम वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली कैसे करेंगे, इसलिए बहुत इनिशिएटिव ने लिया है। और वन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया गया है। बहुत ज़्यादा मैं सिटी में मार्क किया हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रहा है, और इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कम कम फीस चार्ज कर रहा है, कम कम रुपए चार्ज कर रहा है पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर and robust IT connectivity and digitalization, good governance, especially e-governance and people's participation। e-governance मतलब ई पोर्टल में सारे हो गए और आपको पेन पेपर लेके इस दफ्तर वो दफ्तर वो दफ्तर 10 दफ्तर में घूमने का ज़रूरत नहीं है। बस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठिए, ई पोर्टल में जाइए, आपका जो काम है वहीं पे आराम से हो जाएगा। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, safety and security for citizens, particularly women, children and elderly, health and education। हेल्थ एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कैसे कैसे हम जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। आर समिट वाज हेल्ड एट ऑप्शन डी रियो ब्राज़ील में। द फर्स्ट अर्थ समिट बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, फोर्थ अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो इन 1929। In 2012, United Nations Conference on Sustainable Development was held in Rio and also commonly called Rio Plus 20 or Rio Earth Summit 2012। ठीक है दोस्तों,